Hello student of class 4th. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 12 topic revision. And now in this class, we will start our next topic. Our topic name, forms of verb. So let's start. A verb has 4 forms. एक वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं. लेट अस नो देम. आइए इनके बारे में देखते हैं. फर्स्ट है प्रेजेंट फॉर्म. फर्स्ट और बेस फॉर्म 2. सेकेंड पास्ट फॉर्म. थर्ड है हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म. फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म. सेकेंड हमारी पास्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है? डू की सेकेंड फॉर्म डिड. पास्ट पार्टिसिपल्स थर्ड फॉर्म. डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म डूइंग प्लस ing. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स. यहाँ पे हमारी 4 फॉर्म्स की लिस्ट है. देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम प्रेजेंट फॉर्म का है, सेकंड कॉलम पास्ट फॉर्म का है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का है, एंड फोर्थ है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. फर्स्ट है अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, abusing. Advise, advised, advised, advising. Agree, agreed, agreed, agreeing. Arise, arised, arised, arising. Answer, answered, answered, answering. Next है ask, asked, asked, asking. Bark, barked, barked, barking. Next है breath, breath. Bath, bath, bathing. Become, became, become, becoming. Next begin, begin, begun, beginning. Blossom, 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 blossoming. Beat, beat, bitten, beating. Bite, bite, bitten, beating. Break, broke, broke, breaking. Buy, bought, both, buying. Catch, cut, cut, catching. Next choose, chose, chosen, choosing. Come, came, come, coming. Cook, cooked, cooked, cooking. Next cry, cried, cried, crying. Close, closed, closed, closing. Dance, danced, danced, dancing. Drink, drank, drunk, drinking. Divide, divided, divided, dividing. Eat, ate, eaten, eating. Enter, entered, entered, entering. Find, found, found, finding. Fall, fell, fallen, falling. Fail, failed, failed, failing. Finish, finished, finished, finishing. Fine, 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 finding. Fight, fought, fought, fighting. Give, gave, given, giving. Go, went, gone, going. Get, got, gotten, getting. Grow, grew, grown, growing. Help, helped, helped, helping. Hate, hated, hate, hating. Hear, heard, hear, hearing. Know, knew, known, knowing. Kill, killed, killed, killing. Love, loved, loved, loving. Laugh, laughed, laughed, laughing. Like, liked, liked, liking. Look, looked, looked, looking. Move, moved, moved, moving. Make, made, made, making. Obey, obeyed, obeyed, obeying. Open, 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 opening. Order, ordered,
ordered, ordering. Play, played, played, playing. Punish, punished, punished, punishing. Promise, promised, promised, promising. Read, 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 reading. Run, ran, run, running. Rise, rose, risen, rising. Reach, reached, reached, reaching. Sing, sang, sung, singing. Sit, sat, sat, sitting. Sleep, slept, slept, sleeping. Speak, spoke, spoken, speaking. Talk, talked, talked, talking. Teach, taught, taught, teaching. Think, thought, thought, thinking. Take, took, taken, taking. Waste, wasted, wasted, wasting. Wait, 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 waiting. Write, wrote, written, writing. Weep, wept, wept, weeping. Work, worked, worked, working. एंड जो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, राइट द मिसिंग फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको मिसिंग फॉर्म्स राइट आउट करनी है. एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड this revision of topic and this revision learn in your book. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class second chapter revision is complete. Today we will start a new chapter number 3, Roman numerals. Students, हिंदू अरेबिक numerals होते हैं, उनको कुछ सिंबल्स के द्वारा हम रोमन numerals में राइट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये 7 सिंबल्स होते हैं रोमन numerals के. 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश वर्ड आई से. 5 को इंग्लिश वर्ड वी से. 10 को इंग्लिश वर्ड एक्स से. 50 के लिए इंग्लिश वर्ड एल होता है स्टूडेंट्स. 100 के लिए इंग्लिश वर्ड सी. 500 के लिए इंग्लिश वर्ड डी. 1000 के लिए इंग्लिश वर्ड एम. स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको सिर्फ 100 तक मीन्स सी रोमन न्यूमरल्स तक की रीड और राइट करनी है स्टूडेंट्स 0 के लिए अलग से कोई रोमन न्यूमरल्स नहीं होता है, ना ही रोमन न्यूमरल्स की प्लेस वैल्यू निकाली जाती है स्टूडेंट्स. नाउ रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स. स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स को लर्न और राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट, स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स 2 या 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, उसका मतलब होता है एडिशन. फॉर एग्जांपल आई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 1 को 3 टाइम्स प्लस करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3. सेम है स्टूडेंट्स, एक्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 10. मीन्स हमें 10 को 2 टाइम्स ऐड करना है स्टूडेंट्स. 10 + 10 इक्वल टू 20. रिमेंबर, आई, एक्स एंड सी कैन नेवर बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. स्टूडेंट्स, आई, एक्स और सी है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट किए जा सकते. वी, एल कैन नेवर बी रिपीटेड. और स्टूडेंट वी और एल है वो रिपीट नहीं होते हैं. रूल नंबर 2, स्टूडेंट्स, यदि ग्रेटर रोमन न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का रोमन न्यूमरल्स राइट किया हुआ है, उसका मीन्स क्या होता है? एडिशन. फॉर एग्जांपल, वी आई, वी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 5, और इसके राइट साइड में आई राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स. आई का मीन्स क्या होता है? 1 इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6. एल प्लस एक्स, एल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 50. राइट साइड में क्या राइट किया हुआ है? एक्स. एक्स का मीन्स क्या होता है? 10 इक्वल टू 60. और रूल नंबर 3, फ्रेंड्स, यदि ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स राइट किया हुआ है, तो उसका मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, आई वी, वी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 माइनस आई मीन्स 1. लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स तो क्या करना है? माइनस करना है. 5 - 1 इक्वल टू 4. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स एल. एक्स फ्रंट साइड में है, एल का मतलब क्या होता है? 50 माइनस एक्स मीन्स 10. 50 - 10 इक्वल टू 40. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स में गिवन है, इनको रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है. पार्ट बी में गिवन है 37. आंसर 37 को स्टूडेंट्स कैसे राइट कर सकते हैं? 30 + 7. स्टूडेंट्स, आगे 7 को भी 5 + 2 करके राइट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, 30 मीन्स 3 टाइम एक्स प्लस 5 का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? वी. 2 मीन्स 2 टाइम्स आई. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में विदाउट प्लस के साइन किनको राइट कर देंगे? 3 टाइम एक्स वी 2 टाइम्स आई इक्वल टू 37. नाउ पार्ट आई में गिवन है स्टूडेंट्स 199. 199 को ऐसे राइट कर सकते हैं 100 + 90 + 9. स्टूडेंट्स, 90 को कैसे राइट कर सकते हैं? 100 - 10
और 9 को 10 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स 100 के लिए क्या सिंबल होता है? C प्लस 100 के लिए सिंबल है स्टूडेंट्स C सेम, और स्टूडेंट 10 को माइनस करना है तो 10 के लिए सिंबल था X, उसको C के राइट साइड में राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, प्लस 10 माइनस 1। स्टूडेंट 10 के लिए क्या था? X सिंबल, और उसमें से 1 को माइनस करना है तो 1 के लिए था I सिंबल, उसको X के राइट साइड में राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, I X। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में विदाउट प्लस के साइन इनको सेम राइट कर देंगे, C X C I X रोमन numerals of 199। I think students you understand. Now we do next question. Question number second, write the following in Hindu Arabic numerals. Student question number second में हमें रोमन numerals में given है, इनको हिंदू अरेबिक numerals में राइट करना है। Now student part A X C। C मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 100, और C के राइट साइड में X राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स, मीन्स उसमें से माइनस, C में से माइनस होगा 100 माइनस X मीन्स क्या होता है 10 इक्वल टू 90। नाउ पार्ट C L I V। L मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 50 प्लस IV, V के राइट साइड में I गिवन है स्टूडेंट्स, V मीन्स होता है स्टूडेंट्स 5 माइनस 1, सो स्टूडेंट्स 50 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 54। पार्ट O C C L X X X I X। स्टूडेंट्स इनको अलग अलग राइट कर लेंगे। मीन्स क्या होता है 100, या 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मीन्स 200, प्लस L मीन्स क्या होता है 50, प्लस X मीन्स क्या होता है 10, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है मीन्स 30, प्लस I X, X मीन्स होता है स्टूडेंट्स 10, और X के राइट साइड में I राइट किया हुआ है मीन्स 10 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स 200 प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 280, प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 280 plus 9 is equal to 289. I think students you understand how to write Roman numerals in Hindu Arabic numerals and Hindu Arabic numerals in Roman numerals. Now we do next question. Question number third, add the following. Students question number third में given numbers को add करना है। पार्ट ए में given है V I I plus I I। में students V का मीन्स क्या होता है 5, I 2 times I रिपीट हो रहा है, प्लस 2 क्या हो गया 5 plus 2 is equal to 7। यहाँ पे 2I मीन्स प्लस 2 क्या है स्टूडेंट्स 9। 9 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स? X मीन्स होता है 10, 9 राइट करना है तो उसके X के राइट साइड में I को राइट कर देंगे। राइट साइड में राइट करना मीन्स स्टूडेंट्स 10 में से 1 माइनस हो गया 9। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ई में गिवन है X L I X प्लस I I। स्टूडेंट्स L के राइट साइड में X गिवन है, L का मीन्स होता है स्टूडेंट्स 50, 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 40। यहाँ पे X के राइट साइड में गिवन है I मीन्स 10 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9। नाउ स्टूडेंट 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49, 2 टाइम्स I मीन्स 2, 51। 51 को स्टूडेंट्स रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे? L मीन्स 50 और I मीन्स 1। स्टूडेंट्स आप इनको साइड में सोल्व करके फिर यहाँ अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। पार्ट H में C मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स 100, उसके राइट साइड में X गिवन मीन्स 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स 90, प्लस X मीन्स क्या होता है 10। स्टूडेंट्स क्या है 100, 100 को रोमन न्यूमरल्स में किससे डिनोट करते हैं? C से। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉर द गिवन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स इसमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन है, उनके लिए रोमन न्यूमरल्स के करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। स्टूडेंट्स 49, 49 को कैसे राइट करेंगे? 40 प्लस 9, 40 रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट होगा स्टूडेंट्स? L में से X को माइनस कर देंगे, प्लस 9 को कैसे राइट करेंगे? X में से I को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। 49 रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? X L I X। ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको टिक कर देंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन है 90, 90 को कैसे राइट करेंगे? 100 के लिए सिंबल होता है स्टूडेंट्स C, और उसमें से 10 को माइनस कर देंगे X को, मीन X माइनस C। ये ऑप्शन करेक्ट होगा 90 के लिए। I think students you understand, so you can easily revise question number 1st, 2nd, 3rd and 4th of exercise 3.1. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 13, study of the past. Dear students, in our previous video we will revise this chapter, question number 1st, 2nd and 3rd. I hope you learn these questions, and today we will revise this chapter remaining questions. So let's start. Dear students, our question number 4th is, what are the different सोर्स ऑफ हिस्ट्री? जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग स्रोत कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के अलग अलग सोर्सेज के नेम बताने हैं।
कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट आंसर लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर टू काइंड्स। इतिहास के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं हमारे, जैसे पुरातात्विक स्रोत, वो हमारे होते हैं आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। नाउ नेक्स्ट पार्ट है सोर्सेज का, लिटरेरी सोर्सेज। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, जैसे आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड मोन्यूमेंट्स। सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज रिफर टू ऑल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर वो ये रिफ़र करते हैं, ये बताते हैं कि जितने भी लिखित रिकॉर्ड हैं पास्ट के, वो सारे लिटरेरी सोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा? लिटरेरी सोर्सेज रिफ़र टू ऑल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। जितना भी बीते हुए कल के रिटन रिकॉर्ड हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं लिटरेरी सोर्स में, साहित्यिक स्रोत में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? फोर्ट्स, temples, palaces and other structure built for some special purpose are called monuments। जो हमारे फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं या फिर पैलेसेस और भी जो स्ट्रक्चर हैं जो बनाए जाते हैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, उन्हें हम कहते हैं मोन्यूमेंट्स कहते हैं, स्मारक कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू दे टेल अबाउट हिस्ट्री। बेटा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके 2 पार्ट्स थे। यहाँ पे हम बुक में देख सकते हैं व्हाट आर मोन्यूमेंट्स और व्हाट डू दे टेल अबाउट हिस्ट्री। तो व्हाट आर मोन्यूमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्हाट डू दे टेल अबाउट हिस्ट्री, यानी कि जो मोन्यूमेंट्स हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं। व्हाट डू मोन्यूमेंट्स टेल अबाउट हिस्ट्री, हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आंसर है दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। यानी कि जो मोन्यूमेंट्स है वो हमें ये बताते हैं उस समय के बारे में जब उन्हें बनवाया गया था। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। जब उन्हें बनाया गया था उस समय के बारे में मोन्यूमेंट्स हमें बताते हैं, स्मारक हमें बताते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, यू लर्न कंप्लीटली दिस क्वेश्चंस। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कल पाठ 3 संज्ञा, आप सभी के समझ में आ गया होगा। आज मैं उसके अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है, कैसे? इसका उत्तर होगा सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है। क्या बताया मैंने? सभी प्राणियों, जितने भी यहाँ संसार में प्राणी है सभी के नाम है, सभी वस्तुओं के नाम है, सभी स्थानों के नाम है और सभी भावों के। ठीक है, तो इस तरह से जब सभी के नाम है तो क्या हो गया? परिवार बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना? तो क्या बनेगा उत्तर इसका? सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है। संज्ञा के भेदों को उदाहरण द्वारा समझाइए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम आते हैं जो उनके स्वयं के होते हैं। ठीक है, दिल्ली एक विशेष शहर है, बहुत सारे शहर नहीं है, दिल्ली एक ही शहर है। ऐसे ही गंगा एक नदी है, दीपावली एक त्यौहार है, सोमवार एक दिन का नाम है, जनवरी एक महीने का नाम है और महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो जो विशेष नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे शहर, सभी शहरों के अलग अलग नाम होते हैं और वैसे उनको शहर कहते हैं। उनकी पूरी जाति का नाम क्या है? शहर। ऐसे नदी, नदियाँ बहुत सारी हैं, नाम होते हैं तब वो व्यक्तिवाचक होती है। और जब हम नदी कहेंगे तो ये उनकी जाति का नाम है, तो ये जातिवाचक होगा। ऐसे ही त्यौहार, दिन, महीने, आदमी, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द आते हैं जो हम महसूस करते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता, जो हमारे मन के भाव होते हैं, मिठास, हरियाली, सुंदरता, बचपन, ईमानदारी, ये सभी महसूस करने की चीज़ें हैं। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हर वर्ग के 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बनाइए। चित्र देखने हैं और उनके लिए 3 विशेष नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक चित्र है, किसका है, नदी का है। तो नदी के नाम, विशेष नाम गंगा, यमुना, सरस्वती और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हमने यही 3 उदाहरण दिए हैं। ऐसे ही ये एक लड़के का चित्र है, लड़के में हमें विशेष नाम लिखना है लड़कों का। लड़के का हमने लिखा रोहन, मोहन, सोहन। आप किसी और भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चित्र है इंडिया गेट का, तो इसका विशेष नाम है इंडिया गेट। ये दिल्ली में है और राजपथ पर है, ये इसके विशेष नाम है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही चिन्ह लगाइए। जातिवाचक का यानी जो पूरी जाति के बारे में बताए। तो यहाँ पर जातिवाचक है बालक, कपड़ा, किताब, घोड़ा, कुर्सी और शेर। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। पहले ता लगाकर बनानी है। स्वतंत्र से बन जाएगा स्वतंत्रता, समान से समानता, कठोर से कठोरता और सुंदर से सुंदरता। अभी ई लगाकर बनानी है। अच्छा से अच्छाई, लंबा से लंबाई, गरीब से गरीबी और छोटा से छोटाई। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखें। पहला वाक्य है, मनु की लंबाई सब लड़कों में अधिक है। यहाँ व्यक्तिवाचक कौन है, विशेष नाम क्या है, मनु। जातिवाचक लड़कों और भाववाचक है लंबाई, ठीक है। राम अपने साथियों से मित्रता का व्यवहार करता है। यहाँ व्यक्तिवाचक है राम, जातिवाचक है साथियों और भाववाचक है मित्रता। अगला वाक्य, हिंदी की किताब की अच्छाई पढ़कर पता लगी। तो व्यक्तिवाचक में आएगा हिंदी, जातिवाचक में आएगा किताब और भाववाचक में आएगा अच्छाई। आगे है, एवरेस्ट की ऊंचाई सभी चोटियों से अधिक है। तो व्यक्तिवाचक में आएगा एवरेस्ट, जातिवाचक में आएगा चोटियों और भाववाचक में आएगा ऊंचाई। ताजमहल की सुंदरता ने पर्यटकों का मन मोह लिया। तो व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, ताजमहल। जातिवाचक में पर्यटकों और भाववाचक में सुंदरता। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing basic questions of computer for SC1 revision. First question is, all the processing of computer is done in. जो कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, CPU. CPU stand for Central Processing Unit. Processing device is CPU. Second question is, he is known as father of computers. फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट है हरमन होलरिच, सेकंड है ग्रेस होफर, थर्ड है चार्ल्स बेबेज, फोर्थ है न्यूटन। तो क्या होगा इसका, सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन थर्ड है, फॉर सिंगिंग द आउटपुट यू यूज़। आउटपुट के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? ए मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ स्कैनर। तो क्या होगा इसका, मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर इज लुक लाइक ए टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंटर इज ए डिवाइस विच। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस? इसका फर्स्ट है ए इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड बोथ या फिर नन ऑफ दिस। इसका होगा प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे मॉनिटर क्या देता है हमें, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, वैसे ही प्रिंटर क्या देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 5, माउस इज ए डिवाइस विच, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्कैनर स्कैन, स्कैनर से हम क्या स्कैन कर सकते हैं? ए पिक्चर, सेकंड बी टेक्स्ट, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका? सी, हम पिक्चर भी स्कैन कर सकते हैं और टेक्स्ट भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ की इन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है टोटल? कितनी कीज होती है? 104, यहाँ पे कितनी होगी? 104। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कीबोर्ड इज ए डिवाइस विच, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। All students do all these questions very carefully. Thank you. Have a nice day.